Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. Welcome to Sani's Physics classes. I am Professor H.R. Sani. I am here to make physics interesting, easy to understand, and a scoring subject for you. Now, let us come to today's topic. And today's topic is of chapter 1 of class 11th, and the name of the chapter is Physical World, and this is video number 2 on physical world. Today in this topic we will study the scope and excitement of physics and the relation of physics with the other types of sciences. So let us first of all come to the scope of physics. The scope of physics is very, very wide. It deals with atomic or molecular level to the astronomical level. You can imagine the size of an atom is very, very small. The size of a molecule is very, very small. And the astronomical level is where we study the astronomical objects, that is the celestial objects, and also we study about the universe. So the scope of physics is very, very wide. और इसमें हम जैसे लेंथ मापनी हो तो उसका बहुत रेंज है. We can measure length up to the size of proton, which is of the order of 10 raised to minus 15 meter, and we can measure the size of the universe, which is of the order of 10 raised to 26 meter. Then we can measure very small mass, starting from the mass of electron, which is of the order of 10 raised to power minus 30 kilogram, to the mass of the universe, which is of the order of 10 raised to the power 55 kilogram. Then we can measure very, very small time, that is the life span of the most unstable particle, and that time is of the order of 10 raised to power minus 24 second, and we can measure time up to the age of the universe, which is of the order of 10 raised to the power 17 second. तो इसका मतलब क्या बना कि फिजिक्स का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है, इसका डोमेन बहुत ही बड़ा है, और इसके पूरे डोमेन को हम 3 डोमेन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक है मैक्रोस्कोपिक डोमेन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, और तीसरा है मेसोस्कोपिक डोमेन. एंड इन द मैक्रोस्कोपिक डोमेन we deal with those objects which are whose size is measurable and they can be seen with the naked eye. That means in this we can study those objects which can be seen with naked eye up to very large objects, that, for example, the celestial objects. And the branch of physics which deals with the macroscopic domain is called classical physics. Classical physics means, I told you earlier also in my first video, that classical physics is the physics up to the year 1900, और इसमें हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इसमें मैकेनिक्स जो है दैट इज अबाउट द मोशन ऑफ द डिफरेंट बॉडीज, फोर्स के बारे पढ़ते हैं, और इसमें जितना भी मोशन है वो स्टडी करते हैं. और इसमें 3 चीज़ें आती हैं. एक आती है स्टैटिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट. एक आती है काइनेमैटिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. एंड द थर्ड वन इज डायनेमिक्स, विच इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन. फिर ऑप्टिक्स जो है इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लाइट, व्हाट इज लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, और इसकी 2 ब्रांचेज हैं मेनली. एक है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरी है फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स is that branch of optics in which we deal with the properties of light
विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेचर। हम इसमें ये नहीं बताते कि लाइट है क्या, हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड सो ऑन। और जो वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लाइट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेचर, जैसे फिनोमिना like interference of light, diffraction of light, polarization of light, they are studied under the heading optics। और जिसकी मैंने आपको बताया दो ब्रांचेस हैं, रे ऑप्टिक्स और फिजिकल और वेव ऑप्टिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे पढ़ते हैं, व्हाट इज हीट, हीट इंजन क्या है, और इसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं अबाउट हीट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एज यू नो इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसमें हम फिर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विच इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जिसमें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। फिर हम इसमें मैग्नेटिज्म के बारे पढ़ते हैं, और मैग्नेटिज्म में एक है मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक पोल्स एट रेस्ट। फिर उसमें हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम पढ़ते हैं। और ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, अगर आपसे को पूछे कि हु आर द फाउंडर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तो आपने कहना है गैलीलियो एंड न्यूटन। इन दोनों को हम बोलते हैं फाउंडर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इन फैक्ट दोनों को हम फादर्स ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहते हैं, और गैलीलियो को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जो साइंस के फील्ड में रेवोल्यूशन आया उसमें गैलीलियो का बहुत ही काम था। तो ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक डोमेन। देन वी कम टू द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इन दिस वी डील विद एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, एंड वी आल्सो स्टडी अबाउट the elementary particles like electrons, protons, neutrons and photons and their interaction also। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन, फोटोन और अदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं दे आर आल्सो स्टडीज इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और ये जो डोमेन है इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, इसलिए इसके लिए क्वांटम फिजिक्स इवॉल्व हुई, विच इज द फिजिक्स आफ्टर द ईयर 1900। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हु आर द फाउंडर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, तो आपने कहना है नील्स बोहर एंड मैक्स प्लैंक, एंड बोथ ऑफ देम वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन दीज फील्ड्स। और इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम क्वांटिटीज लाइक मोमेंटम और एनर्जी, चार्ज, दे आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स कि दे एग्जिस्ट ओनली इन एज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कम से कम वैल्यू हो सकती है उसके होल नंबर मल्टीपल में ही ये चीजें हो सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन as integral multiple of the minimum charge. And what is the minimum charge? The magnitude of charge on electron. That means charge on electron can be plus minus n into e, where n cannot be a fraction. It can be 1, 2, 3, 4, so on. Similarly, angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड। और तीसरा इसमें साइंटिस्ट जिसको हम इसका फाउंडर कहते हैं वो है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, जिसमें हम कहते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड ईच बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी वो किसके बराबर होता है? मान लो लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू, देन the bundle or packet of or quantum of energy is given by E equal to h into nu, E equal to h into nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया h की कितनी होती है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकेंड, और इसको हम Planck's constant बोलते हैं। इस तरह एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड, जिसमें कि फिर बोहर ने थ्योरी दी थी
to explain the atomic spectrum of hydrogen, for which he was awarded Nobel Prize. तो ये आ गया क्वांटम फिजिक्स में. अब तीसरी जो चीज़ है दैट इज द मीजोस्कोपिक डोमेन. ये जो डोमेन है इट डील्स विद, और यू कैन से इट इज द सब डिसिप्लिन ऑफ कंडेंस्ड मैटर. इट इज द सब डिसिप्लिन ऑफ कंडेंस्ड मैटर and it deals with objects having intermediate dimensions, और वो dimensions हो सकती हैं from nanoscale to the micrometer scale. तो जो इस डोमेन में ऑब्जेक्ट आते हैं उनकी स्टडी जो है वो हम करते हैं अंडर द डोमेन मीजोस्कोपिक डोमेन. सो दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. इन फैक्ट फिजिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया था कि इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल साइंसेस. नाउ वी कम टू एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स इज ए वेरी वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट. इसमें बहुत सी रिसर्च होती है जिससे हम कोशिश करते हैं to have a complete understanding of the universe and the various natural phenomena. So पूरी यूनिवर्स में क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन सा फिनोमेना जो उसमें हो रहा है और उसको एक्सप्लेन करना, उसके बारे हम इसमें पढ़ते हैं. और इसमें इसकी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है कि ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज कैन एक्सप्लेन मैनी नेचुरल फिनोमेना. और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आपको पता कि व्हाट इज ग्रेविटेशन? एवरी बॉडी in this universe attracts every other body with a certain force known as the gravitational force or simply gravitation. और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है उसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था which is called Newton's law of gravitation, and that law is that F is direct equal to capital G into m1 into m2 divided by r square. So this is called Newton's law of gravitation. This is the mathematical form of Newton's law of gravitation. इसमें capital G जो है that you know is a constant known as universal gravitational constant. अब कई बार कहते हैं कि इसके साथ हम world universal क्यों लगाते हैं, why not only gravitational constant? तो उसका जवाब है कि इसकी जो वैल्यू है दैट इज द सेम एट ऑल प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स. इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू डिफरेंट हो. यहाँ पे मर्जी चले जाओ, एनीवेयर इन स्पेस, एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इसकी वैल्यू सेम होती है. m1 एंड m2 आर द masses ऑफ द टू बॉडीज विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. सेंटर का मतलब यहां पे उन बॉडी का मास जो है वो एक्ट कर रहा है, उसको हम सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं. अब इस फोर्स से, इस लॉ से विच इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सभी बॉडी जो हैं इफ दे आर अलाउड टू फॉल फ्रीली तो वो किस तरफ आती हैं? टुवर्ड्स दी अर्थ आती हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि वाई, या ये पूछे कि कितनी एक्सेलरेशन से आती हैं, तो वाई का आंसर तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन दोज बॉडीज. और याद रखो जो अर्थ के कारण किसी बॉडी पे लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका स्पेशल नाम है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी. And it is due to gravity that all bodies fall towards the center of the earth. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया. और एक्सेलरेशन निकालनी हो तो इसको हम यूज करेंगे F इक्वल टू ma. ये जो फार्मूला F इक्वल टू ma है ये भी हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन. तो इससे हम, इस फार्मूले से F इक्वल टू ma से हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने पे जिसका मास हमें पता हो हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी है. सो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम फिजिक्स में हैं, स्पेशली इन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एटसेट्रा, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द फार्मूला F इक्वल टू ma. और अगर मैं यहाँ पे आऊँ दोबारा तो एक तो मैंने आपको बताया कि सभी बॉडीज नीचे की तरफ क्यों आती हैं, कितनी एक्सेलरेशन से आती हैं, वो एक्सेलरेशन हम इसी से निकाल लेते हैं. यहाँ पे हम F की जगह ma लिखते हैं और a की जगह g लिख देते हैं. तो वहां से हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे m1 हम फिर ले लेंगे मास ऑफ द अर्थ और m2 ले लेंगे मास ऑफ द बॉडी. ये m से m हो जाएगा कैंसिल, तो g आ जाएगा gm. और यहाँ पे
आ गया डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड इफ द बॉडी इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो जीएम ओवर आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू आपको पता है होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि सारे प्लैनेट जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ये जो सोलर सिस्टम हमारा है उसमें सारे प्लैनेट जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और आपको पता है रिवॉल्व करने का मतलब सर्कुलर मोशन हो गया, और सर्कुलर मोशन के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं सेंटीपीटल फोर्स. जब तक हम सेंटीपीटल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे कोई बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती. सो अगर आपसे को पूछे कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन और व्हाट प्रोवाइड्स सेंटीपीटल फोर्स टू ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर इस फार्मूले को जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, इसको यूज करके हम मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अबाउट द अर्थ, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनके मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी ऑर्बिटल स्पीड निकाल सकते हैं, उनका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाल सकते हैं, बहुत कुछ हम इससे कर सकते हैं. और ये इसकी बड़ी एक ब्यूटी है फिजिक्स की कि इसमें थोड़े से जो लॉज हैं दे कैन एक्सप्लेन मैनी कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज इन फिजिक्स. तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, देयर कैन बी मोर एग्जांपल्स आल्सो. अब देखिए फिर ये है कि एवरी प्रॉब्लम इन फिजिक्स इज ए चैलेंज. कोई भी प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में तो साइंटिस्ट टेक इट एज ए चैलेंज, तो वो उसको चैलेंज मान के चलते हैं और फिर उसको स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं. और जो एक्सपेरिमेंट आते हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं उनको स्टडी करके फिर उनको करेक्शंस अप्लाई करते हैं. और करेक्शंस अप्लाई करके ये, क्योंकि फिजिक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि देयर इज़ गुड स्ट्रेटजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. जो रिज़ल्ट आएंगे उनमें अप्रॉक्सीमेट करके उनको हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं. और फिर ये जो रिजल्ट आते हैं एक्सपेरिमेंट्स के, दे आर अप्लाइड फॉर द यूजफुल पर्पसेस. सो एक्साइटमेंट लीड्स टू प्रोग्रेस, एंड बिकॉज फिजिक्स इज ए वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट एंड देयरफॉर फिजिक्स लीड्स टू प्रोग्रेस. फिजिक्स ने हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाई है, वो मैं आपको बताऊंगा व्हेन आई विल टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन physics and our society. How does physics affect our society? So ये तो बेटा ये हो गया excitement of physics. अब हम आते हैं physics in relation to other sciences. तो सबसे पहले है physics in relation to chemistry. अब देखिए केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, आपने भी शायद पढ़ा हो, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे पढ़ते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे पढ़ते हैं, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं. और एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है. और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, इन सब में हम फिजिक्स ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली दीज आर द टॉपिक स्टडीड इन फिजिक्स. इसका मतलब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फिजिक्स आती है. अब वो जो मैं पीरियोडिक टेबल आपको बता रहा हूँ, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो फिजिक्स से आई है. तो इसलिए केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि फिजिक्स में भी होते हैं और फिजिक्स से ही वो हेल्प लेके उनको एक्सप्लेन करते हैं. बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैन वी से दैट केमिस्ट्री इज ए सबसेट ऑफ फिजिक्स. तो बताओ क्या आंसर दोगे आप. द आंसर इज यस. एंड व्हाई? बिकॉज देयर आर मेनी टॉपिक्स इन केमिस्ट्री विच आर कवर्ड इन फिजिक्स आल्सो. सो दैट इज व्हाई वी कैन से. देन फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स. Mathematics, as I told you, is called mother of all sciences. Physics without mathematics is not possible. जो भी हम equations ड्राइव करते हैं, जो laws को हम एक mathematical form देते हैं, that is possible only because of physics.
इनफैक्ट जब हम लोग एमएससी करते हैं तो उसमें हायर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, और वो मैथमेटिक्स फिर यूज़ होता है इन सॉल्विंग द वेरियस इक्वेशंस इन फिजिक्स। ये जो हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, जो रॉकेट हम छोड़ते हैं, इनकी बाकायदा कैलकुलेशन करी जाती है। छोड़ने से पहले ही पता होता है कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे उसके बाद इतने टाइम पे ये कितनी हाइट पे जाएगा, फिर कितनी हाइट पे कितने टाइम के बाद ये अपने ऑर्बिट में सेट हो जाएगा। ये सब कुछ पहले ही कैलकुलेट किया होता है, और वो किया जाता है बाई सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस। सो मैथमेटिक्स जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। Physics without mathematics is not possible. Then physics in relation to biology. Biology में हम आपको पता ही है लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और उसमें जैसे एक्सरेज हैं, ये मेडिकल साइंस में बहुत यूज़ होती हैं। फिर ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, एंडोस्कोपी वगैरह में यूज़ होती हैं। रेडियोलॉजी है वो यूज़ होती है। कुछ रेडियो आइसोटोप हैं वो यूज़ होते हैं। तो फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बायोलॉजी में। और इससे भी ज़्यादा देखो, बायोलॉजी में जो जब हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, लेकिन सेल्स का साइज बहुत छोटा होता है। तो सेल्स के बारे कैसे स्टडी किया? बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई उसके बाद सेल के बारे पता चला, और फिर ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप बने तो और भी ज़्यादा स्टडी हुई, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस वगैरह के बारे पता चला। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैन बी एज हाई एज 10 रेज टू द पावर 7। ये 1 करोड़ होता है। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को 1 करोड़ गुना बड़ा करके हमें दिखा सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया के बारे स्टडी हुई, वायरस के बारे स्टडी हुई, ये सारी पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप कहाँ से आता है? फिजिक्स से। दैट मीन्स फिजिक्स हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन बायोलॉजी। देन फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इसमें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे स्टडी करते हैं, और इसमें भी हमने अगर हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे स्टडी करना हो तो वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई। उनके बारे स्टडी नहीं कर सकते ठीक तरह। वी रिक्वायर ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम बहुत दूर से देख सकते हैं। जैसे अभी जो सोलर एक्लिप्स लगी थी उसको भी लोगों ने टेलीस्कोप के थ्रू देखा। और जो रेडियो टेलीस्कोप हैं उनसे तो हम और भी क्लियरली बहुत दूर की चीज़ें देख सकते हैं। तो उससे जो हमारा रेंज है यूनिवर्स को स्टडी करने का वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गया। देन physics in relation to technology. Physics is the heart of technology. Technology is not possible without physics. Physics में जो हम रिजल्ट निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, उनको यूज करके ही टेक्नोलॉजी काम आती है। और दे आर इंटर रिलेटेड। टेक्नोलॉजी से कई बार नई चीज़ें फिजिक्स में पता चलती हैं। देखिए जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कोई भी ऐसा चीज़ सोचो जो हैरान करने वाली है, वो कहाँ से आई? फिजिक्स से आई। और फिजिक्स ने लॉज दिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आइंस्टाइन ने कहा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E=mc²। तो उसको दे दिया फार्मूला, बिकॉज ही वॉज ए फिलोसफर। उसने फार्मूला दे दिया। बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था 20th सेंचुरी का वो। लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी काम आई, और फिर एटम बॉम्ब बना, जिससे आजकल दुनिया इतनी डर रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स के कारण है। जैसे सिलिकॉन चिप्स का पता चलने से कंप्यूटर में रेवोल्यूशन आ गई, इंटरनेट, ये बहुत सी चीज़ें हैं। जो कुछ भी आप आज का सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड अपॉन फिजिक्स। देन फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसर्च है हमारी फिजिक्स में, उससे हमें बहुत सी अच्छी अच्छी पता चीज़ें चली। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इन्वेंशन या डिस्कवरी ने एक रेवोल्यूशन लेके आया इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जैसे सबसे पहले व्हील जो है उसकी जो इन्वेंशन थी, दैट वाज ए ग्रेट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उससे हमारी ट्रांसपोर्ट तेज़ हो गई। लेकिन आजकल तो देखो कितनी स्पीड से जहाज़ चलते हैं, और उससे पहले साइकिल चले, फिर कारें चली, फिर ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ हो गए। फिर
जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं हम डैम बना के बिजली पैदा करते हैं, हम थर्मल पावर प्लांट बना के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ये सब जो है ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ फिजिक्स। और कंफर्ट जो हैं आजकल जो एयर कंडीशनर्स हैं, ये सारे इनकी वर्किंग जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन यू थिंक ऑफ एनी कंफर्ट ऑफ लाइफ, और उसमें आपको लगेगा कि ये फिजिक्स से आया है। सो फिजिक्स ने हमारी सोसाइटी के लाइफस्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ही रेज कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो मैंने आपको बताए थे कि दे वर गैलीलियो एंड न्यूटन, और क्वांटम मैकेनिक्स के नील्स बोहर एंड मैक्स प्लैंक एंड ऑफ कोर्स आइंस्टाइन आल्सो। लेकिन अगर आपसे कभी को पूछ ले कि हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ फिजिक्स, इंडियन फादर ऑफ फिजिक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए होमी जहांगीर भाभा, जो कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। और उन्हीं के नाम पे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क, वो उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स in various types of sciences and also in relation to technology and society. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.